नमस्ते। मेरे साथ आज प्रज्वल शास्त्री जी हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट, बेंगलुरु में बेस्ड हैं। और इन सब लोगों की एक ही चाहत है और एक ही वजह से ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अ, देश में डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी एक लार्जर क्वेश्चन है। मैं उस पर भी इनसे बात करूंगा। उस डेमोक्रेसी का जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट डोर इज इज इलेक्शन। उस इलेक्शन को आज की तारीख में हाईजैक कर लिया गया। द होल प्रोसेस हैज बीन हाईजैक है। ट्रांसपेरेंसी है नहीं, जो मनमानी बात हो रही है। और देश के प्रमुख एक्टिविस्ट, सोशल लीडर्स, ये सारे लोगों ने, मीडिया के पर्संस, एक्टर्स, प्रोफेसर्स, दे ऑल हैव जॉइंड टुगेदर एंड दे वांट दैट इंडियन डेमोक्रेसी शुड बी बैक ऑन ट्रैक। और जो इलेक्शन कमीशन है वो अकाउंटेबल भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। इफ समवन हैज सम क्वेश्चन इन देयर माइंड, कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है, उसका आंसर आना चाहिए, उसका जवाब मिलना चाहिए। और ये जो जो कोशिश है, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। इनका कहना, इस आप लोगों का कहना यह है कि जो बिहार में हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज इलेक्शन वाज नॉट ट्रांसपेरेंट। और इसलिए ये बिहार के इलेक्शन को सिरे से खारिज करते हैं। प्रज्वला जी, मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं। डेमोक्रेसी को थोड़ा, अगर जैसे आप, क्योंकि हम लोग कोई लोकतंत्र के, हम लोग विद्यार्थी नहीं है पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन हमारे लिए डेमोक्रेसी एक एक स्टेपिंग स्टोन है, जहां से हमें हमारा संविधान बहुत सी गारंटीज देता है। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप। मैं इस पे पहले आपसे बात कर लूं और फिर आऊंगा मैं कि क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं। हाउ यू सी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अहमियत। So, democracy is something that people like me always took for granted because I was born 10 years after independence. So, तब एक नया दौर जब शुरुआत हुई, it was based on a democracy. It was based on a very strong vision of the future of a new country. So all of these ideas were enshrined in the Constitution. So we talked about equality, we talked about equal opportunity, we also talked about uh, fraternity, and we talked about the future of humanity based on the fruits of science and technology. तो ये science and technology भी एक बहुत important हिस्सा था इसका, ये vision का. 1958 saw, which was the year I was born, saw the science and technology policy, which was brought into force by passing in Parliament. And so all of these things came together in the idea of a republic, of a democracy. And as you say, election एक मतलब एक पहलू है, लेकिन it's not the only step, because elections सिर्फ एक 5 साल में एक बार होते हैं या ऐसा कुछ. But the idea of what democracy entails, the idea that the whole citizenry needs to be educated, there needs to be a system which gives equal opportunity for everyone to be educated in not just learning information but learning how to be a critical citizen. This was part of the process. So scientific thinking, for example, I mean, I'm a scientist, I'm trained as a scientist, but scientific thinking, it was not seen as meant only for scientists. It was seen as meant for everybody. And that was how our future was based. So yes, elections are an important door to making this happen. And election means being able to see the different points of view, being able to see people who have opposing points of view, and being able to see what is best for us and decide what is best for us and choose that. But today, we have a very different system. So Yes. So the way I see it, I mean, हम लोग जब छोटे थे तो ये हमको सिखाया जाता था कि हर सिटीजन का फर्ज है वोट देने का.
So we were taught that it's our duty to vote. लेकिन आज का माहौल ऐसा बन गया है कि it's not just our duty to vote, it is also the duty of each one of us to make sure everybody else can vote, because the system is failing us. So it becomes for us to step up and not just worry about our own vote, but to be worrying about everybody's vote. Because unless सब लोगों को ये वोट कर सके, अगर सब लोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगा. It's not a democracy when only some people can vote. So it has become a situation where I mean, I'm trained as a physicist. I was paid to be a physicist. मेरा काम था कि मतलब कायनात का खोज, ये मेरा काम था. डिस्टेंट गैलेक्सीज, ये कहकशाओं में ब्लैक होल्स हैं, उनको कैसे खोज करना. हाउ डू आई टीच द नेक्स्ट जनरेशन, उनको कैसे दिशा दिखाना. लेकिन नाउ आई हैव टू लीव दैट वर्क and engage in this work. This was not my work. This was supposed to be election commission work. So it has become the work of all citizens to make sure that the democracy is alive, which is actually a ridiculous situation. क्योंकि ये लोग, इनका सैलरी आता है टैक्स पेयर के वजह से, तो वो सैलरी को लेके अपना फर्ज, अपना काम करना छोड़ के ऑपोजिट ही हो रहा है. जी प्रज्वल जी, मैं एक और चीज इसको, मतलब मैं आपका एक रिएक्शन इसलिए जानना चाह रहा हूं. यू बीइंग अ साइंटिस्ट, और आज आपको ऐसा लगा कि नहीं देश के लिए जरूरी, उसके 3 मैं उदाहरण दूंगा. और फिर मुझे, जैसे मैं देख रहा हूं, इस देश में जब आजादी मिली तो एजुकेशन सिस्टम जो उस समय था और आज वो प्रिविलेज फ्यू के लिए है, पैसे वालों के लिए कुछ प्रिविलेज फ्यू है. हेल्थ प्रिविलेज फ्यू के लिए है. लीगल सिस्टम, आप सुप्रीम कोर्ट तो जाने का सोचिए, भूल ही जाइए, हम और आप जैसे लोग भी नहीं जा सकते. सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी, इट इज सो एक्सपेंसिव कि वो आम आदमी. मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी है, जो हमारे और आपके घर में जो लोग काम करने आते हैं, जो हमारी रोज की डोमेस्टिक हेल्प है, उनके पास एक ही चीज है और वो है उनका राइट टू वोट. अब अगर आप उनका वोट को भी उनसे छीन लेंगे तो दे आर लेफ्ट विथ नथिंग. और मतलब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा. बिहार में जहां पे 98-99% लोगों का, पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोट और जो वोटर लिस्ट में होते थे, वो 90, इंडिया का एवरेज है 99%. पीपल आर देयर इन द, बिहार में वो 90% रह गया. तो 10% ऑफ पीपल देयर आर नॉट सपोज, आई मीन दे आर आउट ऑफ द वोटिंग लिस्ट. मैं इस पे इसलिए आपसे पूछना चाहूंगा कि जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस पे उनको पता था कि ये हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने भारत में कहा था कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू मेक मी अ वोटर. मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मैं इस पे भी चाहूंगा, क्योंकि ये आप एक उस बहुत ही समाज के सबसे दलित, सबसे डाउन ट्रॉडन को का एक हक छीन रहे हैं, और वो हक छीनने का सामने दिख रहा है. मैं आई जस्ट नीड अ वेरी स्मॉल कमेंट ऑन दिस. So it's absolutely true. It is absolutely true that adults who are part of the least privileged strata of society, they do feel empowered with the right to vote. तो ये बहुत important चीज है उनके लिए. और लेकिन ये डेमोक्रेसी का सिर्फ एक ही हिस्सा था. उनका हक सिर्फ वोट देने का हक नहीं, उनका हक ये भी होना चाहिए कि उनको एजुकेशन मिले, उनको लाइवलीहुड मिले, उनको घर मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले. ये सब एक डेमोक्रेसी का मतलब इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. तो वोट इनमें से सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन वो भी, उसको भी अब छीन जा रही है. तो this is a very serious problem. And what is a problem is that ये जो व्यवस्था था इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन, all the staff, everything paid by taxpayers funds, उसका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना
वोट कर सकें. So as time goes on, जैसे हम आगे बढ़ते जाएं तो the opportunity for people to give their vote, the barriers to people which prevented them from putting their vote should have reduced. So it should have become easier for more and more people to cast their vote. तो Yes. अब फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम आया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए घर आके वो वोट दे सकते हैं. सो दीज आर स्टेप्स विच मेक इट इजियर फॉर सिटीजन्स टू वोट. लेकिन it has become a situation where the election commission is becoming like a gate, like a barrier itself. क्योंकि for example as a scientist we are trained to go by evidence. लेकिन गोइंग बाय एविडेंस आगे जब हम बढ़ते हैं तब सबूत के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहिए. ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये हमारा देश के लिए है, ये पॉलिसी के लिए है कि एविडेंस बेस्ड एक्शन, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी. लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज डूइंग द ऑपोजिट. उनको मालूम है कि there is a huge strata of society which is not, maybe access to literacy is limited, access to digital technology is limited, access to offices are limited, not just partly because उनको अपने रोजगारी मतलब they have to work every single day in order to earn their living. So they don't have time to go stand in queue and in front of offices and do all this. And on the other side, the processes of enabling you to even give your right to vote, I mean so many other things also, but even the right to vote are becoming more complex. They should have become less complex. It should have been कि election commission enables people to go to workplaces, जहाँ पे काम हो रहा है और वो रोजगारों को जैसे कि जैसे जल्दी से जल्दी अपना वोट देने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या जो भी हो, उसको देने के लिए उनका एफर्ट होना चाहिए था. लेकिन अब ऑपोजिट हो रहा है कि जो लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह पे दूसरे मतलब स्टेट में जाते हैं, उनके लिए उनका वोट छीना जा रहा है ऐसे. सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं और भी मॉडर्न हो रहे हैं, तब वर्किंग क्लास लोगों के लिए और भी बैरियर्स ज्यादा हो रहे हैं और मतलब it's becoming more difficult for them to even forget about casting their vote, even to get the right to vote. So so that means that the election commission is not going by evidence, it is going by something else. So it is completely lost credibility. It is delegitimizing itself, because if it were to go by evidence, they would have seen ki what is the situation on the ground, what is the situation for migrant laborers, what is the situation for people जो हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, उनको एक भी दिन नहीं मिलता है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं और वहां क्यू पे खड़े हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट दे दें. So when that is a situation, that is the evidence, what should the election commission be doing? And they are doing the completely opposite thing. So yeah, correct. प्रज्वल जी, मैं मतलब बिफोर आई फिनिश मैं इतना बता दूं कि इसीलिए जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, it says and the election commission is duty bound to make every Indian who is above 18 years of age, of sound mind, to make the voter. ये मुझे नहीं जाना है, it is their responsibility, ये उनका काम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा. अब ये बिल्कुल रिवर्स कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं कि नहीं मैं जाऊं, मैं फॉर्म दूं, फिर उसके साथ एक कुछ और अटेस्ट करा के दूं, सर्टिफिकेट दूं, दिस. और मुझे ऐसा लगता है कि इन नटशेल इलेक्शन कमीशन जो आप लोगों की मुहिम है, इट हैज टू बी मेड अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. इफ आई एम आस्किंग फॉर समथिंग कि भाई ये ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे वोट गलत हुए हैं, ये डुप्लीकेट वोट है, देयर इज अ ब्राजीलियन मॉडल who is on the voter list at 22 places, they have to answer that.
ये कहना कि नहीं नहीं मैं इस पे नहीं करूंगा, इस पे एफिडेविट दीजिए, ये सब बिल्कुल वो है। थैंक यू सो मच एंड माय बेस्ट विशेस फॉर द थिंग व्हिच यू ऑल आर टेकिंग। इट इज समथिंग कि इस देश को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पहला स्टेप है, एज आई सेड। थैंक्स सो मच। और आई एक्सपेक्ट प्रज्वल जी कि एक दिन आपका जो एक्चुअल जो नॉलेज है उस पर हम लोग एक अलग से बात करेंगे ऑन द एस्ट्रोफिजिस्ट, क्योंकि वो भी एक है, दर्शकों को पता रहना चाहिए कि दुनिया कैसे चल रही है। इथोपिया में कुछ हुआ है और इंडिया तक उसकी अगर डस्ट आ रही है, तो अगर कहीं और कुछ हो रहा है तो वी ऑल आर अफेक्टेड। थैंक्स सो मच, थैंक यू।